Hello, my dear student of Standard Ninth. Welcome back once again. And today we are going to start chapter number 5, that is the movement toward the independence, and this is the part 3. But, friend, before the starting of the chapter, I would like to share something with you. Okay, answer me. Last night, I was watching KBC, Kaun Banega Crorepati, and in that one question is asked. And you know what? That question is asked from this chapter only, and we uh, already discussed all the things in the part one also. So here is the question: uh, Motilal Nehru and Chittaranjan Das formed which party in 1923? Come on, think the answer. I'm giving you 5 seconds. Okay. When that question was asked, na, straight away, without any option, I said Swaraj Party. My mother used to look me like that. My father looking me. Option A, option B, and option C. There is the Swaraj Party option is there, and that guy has quit the game because he don't know, because he has no lifeline, and she finally takes 6,40,000. So it's a question of 12,50,000. So friends, never ignore the historical facts. In future, you might be get chance to win. Okay, so we will keep updating ourselves, and let us start the chapter number 3. Now today we are going to discuss some of the important fact that every Indian should know. Okay, 1942 movement already we had covered. Now achieving independence and partition of India. फाइनली वो दिन आ गया जब हम इंडिपेंडेंस भी गेन कर रहे हैं। बहुत खुशी भी है हम हमारे पास, लेकिन कहीं ना कहीं हमको दुख भी है कि हमने डिवीज़न के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। A commander of Indian National Army was arrested as a prisoner of war and were accused to treason and put on trial. Babulal Desai and Jawaharlal Nehru pleaded their case. सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी ना, उनको पकड़ पकड़ के वो लोग डाल रहे थे, लेकिन उनके बिहाफ पे बाबूलाल देसाई एंड जवाहरलाल नेहरू ने केस लड़ा. The whole country took a keen in this case. When the British government inflicted them with a punishment, there were a protest against them in the entire country. So जब उन्होंने उनको सजा सुनाई तो पूरा देश उनके अगेंस्ट में हो गया. So blowing the popularist opinion, the government had withdrawn their punishment. So लॉ एंड ऑर्डर के ध्यान में रखते हुए फिर गवर्नमेंट को उनका पनिशमेंट विड्रॉ करना नहीं पड़ा. एंड फ्रेंड्स, यू माइट सरप्राइज टू नो, मेरे जो ग्रेट ग्रेट नाना जी हैं वो भी इसी आर्मी का एक हिस्सा थे. वॉज डाइड अर्लियर एट द एज ऑफ 93, बट जब तक जिए बहुत फिट थे. दिस इवेंट एंड विद द नेवल म्यूटिनी ऑफ बॉम्बे 1946, द ब्रिटिश रियलाइज दैट रूल इन इंडिया विल नो लॉन्गर बी टेनेबल. सो यहाँ से उनको क्लियर हो गया कि अब हम लोग इंडिया में ज़्यादा रूल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों का सपोर्ट कोऑपरेशन तो मिल ही नहीं रहा है. नाउ ऑन February 1947, फ्रेंड्स, February 20, 1947 डेट याद रख लो, ठीक है. एटली, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन अनाउंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट शेल गिव ऑल द पावर्स to the government of India as per the cabinet formula and shall quit India by June 1948. एटली ब्रिटेन के पार्लियामेंट में खड़े होके कह रहे हैं कि हम इंडिया जून 1948 तक छोड़ चुके होंगे और उनको सारी पावर्स हैंड ओवर कर देंगे. मीन्स ये हमारे लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है. Thus, in a change situation, Mountbatten was appointed as a viceroy in place of Lord Wavell. सो उस टाइम पे लॉर्ड वेवल हमारे कंट्री में वाइसरॉय थे. अब नए वाइसरॉय कौन बनते हैं? माउंटबेटन. व्हेन ही टुक द चार्ज ऑफ हिज पोस्ट, कम्युनल राइट्स हैड स्टार्टेड इन इंडिया. अ कंडीशन ऑफ इंडिया हैड बिकम पैथेटिक. सो फ्रेंड्स, ऐसा हो रहा है कि जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर की मतलब इक्वलिटी उनकी पोस्ट मानी जाएगी, वाइसरॉय माउंटबेटन जैसे अपॉइंट होते हैं पूरे देश में कम्युनल राइट्स हो जाते हैं. क्योंकि जो मुस्लिम लीग है वो उनको तो बस एक ही चीज़ चाहिए, पाकिस्तान पाकिस्तान. जैसे हम लोग माइथोलॉजिकल सीरियल में देखते हैं ना, नारायण नारायण, ठीक है, वैसे ही मुस्लिम लीग वाले पाकिस्तान पाकिस्तान. इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको बस अपना एक मुसलमानों के लिए एक अलग कंट्री चाहिए, एंड डेट इज़ पाकिस्तान. अब इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग कम्युनल राइट्स से मारे जा रहे थे.
In July 1946, Congress had secured 201 seats out of 210, and Muslim League secured 73 seats out of 78 from province of the India and prior formation of the Constitution Assembly. तो ऐसे ही एक कंस्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म करने के लिए कुछ इलेक्शन हुए एंड दोनों पार्टियों ने अपने अपने एरियाज में अच्छे से स्कोर किया. द लीग प्रेशराइज द गवर्नमेंट फॉर पाकिस्तान इन 16 अगस्त 1946. ओके, सो लीग मीन्स मुस्लिम लीग, एंड इन्होंने 16 अगस्त को एक पाकिस्तान बनाने के लिए डिमांड रखी. सो टेरिबल कम्युनल राइट्स एंड टर्मोइल स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया. Looking at the situation in India, Sardar Patel, Jawaharlal Nehru and other Congress leaders felt that there is no alternative except accepting the demand of Muslim League for Pakistan, because Muslim League and Jinnah insisted to separate Pakistan. The Muslim League boycotted the first cabinet meeting on December 9, 1946. The Muslim League exhibition held on January 31, 1947. Deciding to boycott the cabinet meeting and give the rapid extension the program for the demand of the Pakistan, Batten convinced Nehru and Sardar Patel, who understand the matter and have well organized central government and having administrative unit under the center, shall be more peaceful and progressive instead of weak central government consisting many autonomous and opposition constitution. National leader found this argument acceptable. Sardar Patel and Nehru discussed this matter with Gandhiji, who also helplessly accepted the arrangement of partition of India with a heavy heart. Friends, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, so let me go through point by point. 16 अगस्त को इन्होंने मुस्लिम लीग वालों ने पाकिस्तान की डिमांड रखी. तो कम्युनल राइट्स होते हैं बंगाल के आसपास के एरियाज़ में. अब उनको मीटिंग के लिए दिसंबर को बुलाया गया, दिसंबर 9 को, बट अगेन उन्होंने बॉयकॉट कर दिया. अगेन 31 की मीटिंग. लुकिंग एट द करंट सिनारियो, ऐसा लग रहा है कि अब जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन एंड सरदार पटेल के बीच में एक मीटिंग होती है. उनको पता है कि हम एक गवर्नमेंट तो बनाने जा रहे हैं, पर वो गवर्नमेंट वीक गवर्नमेंट होगी, क्योंकि इसमें यहाँ पे इतने कम्युनल राइट्स हैं, वो हमेशा पाकिस्तान की डिमांड करते रहेंगे, वो कभी देश को पीसफुल होने ही नहीं देंगे. तो माउंटबेटन ने समझाया कि पार्टीशन ही बेस्ट ऑप्शन है, उनको एक कंट्री सौंप दो, ये जितने भी दुखी आत्माएं हैं उन सबको भेज दो उधर, एंड इस कंट्री में जो रहेगा कम से कम शांति से तो रहेंगे, एक अच्छी गवर्नमेंट बनेगी एंड ऑल डेट. तो उनको भी, कांग्रेस के लीडर्स को लगता है कि हाँ ठीक है. एंड फाइनली ये बात महात्मा गांधी जी के सामने भी रखी जाती है. अब वो भी नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, लेकिन विद हैवी हार्ट उनको भी ये प्लान मानना पड़ता है. अब जब डिसाइड हो गया है कि पार्टीशन होगा, तो कौन से एरिया इंडिया के अंदर होंगे, कौन से एरिया पाकिस्तान के अंदर होंगे, डेट इज़ द मेन क्वेश्चन. सो यू कैन सी माउंटबेटन प्लान 1947 एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया. आप जो जितने भी लोगों को देख रहे हो ना, ये सारे लोग मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं कि पार्टीशन कैसे होगा, क्या होगा एंड ऑल डेट. ओके, फ्रीडम एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान इन द मीटिंग. नाउ बहुत सही जगह फोटो रखा है मैंने. ऑन मार्च 24 वाइसरॉय माउंटबेटन प्रेजेंटेड हिज स्कीम. सो उन्होंने एक स्कीम रखी. अकॉर्डिंग टू हिम देयर वॉज नो अल्टरनेटिव अदर देन द पार्टीशन ऑफ इंडिया. ओके, कोई अल्टरनेटिव नहीं बचता है और इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन करना ही पड़ेगा. ओके, national and the prolific leaders like Sardar Patel understood the matter. After many discussion and pondering, final on June 3, 1947, Viceroy Mountbatten decided the plan. मीटिंग होती है, पता चलता है कि कोई अल्टरनेटिव है नहीं, पार्टीशन एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. एंड फाइनली 3 जून 1947 को बहुत सारी सीरीज ऑफ मीटिंग के बाद फाइनली वो प्लान रेडी हो जाता है. ओके, सो प्लान टू पार्टीशन ऑफ इंडिया. दिस प्लान इज नोन एज द माउंटबेटन प्लान. अगर आपको एग्जाम में आया व्हाट इज माउंटबेटन प्लान, तो आपको ये मेंशन करना है कि इस माउंटबेटन प्लान में
इंडियन पाकिस्तान का जो डिवीज़न पार्टीशन है उसको डिस्कस किया गया था आफ्टर सीरीज ऑफ मीटिंग एंड 3 जुलाई नॉट जुलाई जून 1947 को ये प्रस्ताव रखा गया। द कांग्रेस लीडर एंड द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड दिस प्लान एंड दोनों पार्टियों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। When Mountbatten plan started getting implemented, the people of East Bengal and Sylhet province of Assam decided to join East Pakistan. तो ये कुछ दो प्रोविंसेस थे, इन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए डिसाइड किया। सेलियत प्रोविंस एंड ईस्ट पाकिस्तान मीन्स प्रेजेंट डे बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल वेर एफिलेटेड विद द इंडिया एज पर द डिसीजन ऑफ द असेंबली। असेंबली के हिसाब से उनका डिवीजन किया गया। It was decided affiliate northern province and Sindh and Balochistan with Pakistan. नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो मतलब अफगानिस्तान की बॉर्डर के पास में, सिंध जो गुजरात के जस्ट बाजू में पाकिस्तान का एरिया है, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान की ईरान की बॉर्डर से टच है, ये सारे एरियाज पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिए गए। ओके, अब इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। नाउ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अकॉर्डिंग टू द माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन के प्लान के हिसाब से ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉज माउंटबेटन एंड जनाब जिन्ना वॉज द गवर्नर ऑफ द जनरल ऑफ पाकिस्तान। सो हमारे कंट्री के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? माउंटबेटन। एंड पाकिस्तान में भी ऐसा डिसाइड किया गया था कि माउंटबेटन ही बनेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन लोगों ने कहा कि नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना को ही हमारा गवर्नर बनने दो। बाय दिस एक्ट India's dependence on the British rule came to an end. Therefore, Gandhiji considered this act as the one and only best and beneficial act by the Britishers to India. बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने आज तक कानून पास किए हैं, लेकिन गांधी जी इस कानून को सबसे बेस्ट मानते हैं क्योंकि यही कानून सबसे इंडिया के लिए फ़ायदेमंद है। अब आप लोग सोचोगे कि सर माउंटबेटन को हमने क्यों मतलब गवर्नर जनरल बनाया? देखो, वो उस पोस्ट को संभाल रहे थे पहले से, और ज़्यादा चेंजेस ना हो, हमको भी बहुत सारी तैयारी करनी थी ये वो, तो एटलीस्ट हमने उनको था रिक्वेस्ट किया और वो कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्चुअली में देखने जाए ना, सारे वाइसरॉय में से माउंटबेटन इंडिया के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल थे। ओके, एंड उन्होंने बहुत स्मार्टली काम किया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। The last viceroy of the British government organized a function in the New Delhi at the midnight of the August 14. The Union Jack of England was brought down from the pole and Indian national flag track was hoisted. तो अब क्या होता है, जो लास्ट वाइसरॉय है वो आज़ादी से एक दिन रात पहले अपने आप एक पार्टी थ्रो करते हैं। पार्टी थ्रो करना है, मारना नहीं, थ्रो यानी बोला मारना नहीं, पार्टी रखते हैं। एंड जो पोल था ना, जो खंबा था, उस पर से इंग्लैंड का झंडा नीचे उतारा जाता है, ब्रॉड डाउन, एंड वहाँ पे इंडियन नेशनल फ्लैग ऊपर की तरफ आता है। एंड द डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूटिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हैंडेड ओवर टू माउंटबेटन टू श्री राजगोपालाचार्य, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। एंड बाद में माउंटबेटन जो है वो अपनी सारे के सारे जो फाइल्स होती हैं इंपॉर्टेंट, वो सारी श्री राजगोपालाचार्य को हैंड ओवर कर देते हैं, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर बनते हैं। Entire atmosphere was full of excitement. Entire process of transfer of power was completed 15 August 1947 was an excellent drawn for India. ओके, आप लोग देख रहे हो कि मेरी रीडिंग स्पीड में एक जोश आ गया। क्यों? क्योंकि फाइनली यार हमारा देश आज़ाद हो रहा है। ओके, आज़ादी मिल गई फाइनली। ऑल सेलिब्रेटेड the first independence very pleasantly and cheerfully in the entire country. Everywhere people hung torans and a good omen on door. Sweets were distributed in school. Many people who had taken a vow relieved on their fulfillment by the Gandhiji was shocked due to the partition of India, and therefore he was deeply plunged into the grief and drifted into meditation. So फाइनली वो दिन आया, लोगों ने मतलब एक अच्छे शगुन के लिए अपने दरवाजे पे तोरण लटकाए, रंगोलियाँ बनाई गई, मिठाइयाँ बांटी गई स्कूलों में, एंड सब लोग खुश थे। पर गांधी जी कहीं ना कहीं सैड फील कर रहे थे क्योंकि उन्होंने पार्टीशन के बारे में नहीं सोचा था। वेल, पार्टीशन के बारे में तो किसी ने भी नहीं सोचा था, बट क्या कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया बिकमिंग इंडिपेंडेंट एंड इमीडिएट प्रॉब्लम ऑफ इट। जैसे ही इंडिया आज़ाद होता है उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। क्या क्या आती हैं, लेट्स सी। इंडिया एंड पाकिस्तान, टू सेपरेट कंट्री, इंडिपेंडेंट नेशन, केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ द माउंटबेटन प्लान एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. The resolution of the following problem had been found out. ओके, सो माउंटबेटन का जो प्लान था उसके अकॉर्डिंगली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना,
और 2 कंट्री फॉर्म हुए, 2 नेशंस फॉर्म हुए। लेकिन इंडिया के सामने कुछ प्रॉब्लम थी। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिलिट्री फोर्सेस, अब जितनी भी मिलिट्री थी ना ब्रिटिशर्स के अंडर में, अब वो इंडिया पाकिस्तान में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर द एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। मान लो ब्रिटिशर्स ने जो सारा सब कुछ ट्रांसफ़र किया इंडिया को, इंडिया के पास इतना सोना पड़ा है, कितना सोना पाकिस्तान को मिलेगा, कितना इंडिया को मिलेगा। लाइबिलिटी, मान लेते हैं इंडिया ने यूएसए से 40 करोड़ रुपए लिए हुए, तो कितना उसका रिपेमेंट अब इंडिया वाले करेंगे, कितना रिपेमेंट पाकिस्तान वाले करेंगे, है ना। एसेट्स का प्रॉपर्टी पे लोन पे भी तो होता है ना। डेब्ट्स एंड क्रेडिट्स, ये जो भी मैं डिस्कस किया। प्रॉब्लम एंड सेटलमेंट ऑफ द रिफ्यूजीज, तो किसी को अगर पाकिस्तान छोड़ के इंडिया में आना तो वो आ सकता है, और वो इतने सारे इंडियंस आएंगे, इतने सारे लोग पाकिस्तान से आएंगे, तो उनको उनकी सेटलमेंट का प्रोसीजर, हाँ जो जा रहे हैं उनको जाने दो, नो प्रॉब्लम। नंबर 5, पब्लिक सर्विस एंड अरेंजमेंट टू द सिविल सर्वेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब जो ऑफिसर्स हैं उनको भी पूछा गया कि भाई आप वहाँ पे जाओगे कि यहाँ पर रहोगे, ठीक है। डिमार्केशन ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया टू बी फिक्स्ड एक्सेट्रा। जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है वो खींची जाएगी। तो ये बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमारे सामने आ गई थी। तो फाइनल इसका क्या सोल्यूशन निकाला गया। A 5-member of committee consisting of the 2 representative of the each of India and Pakistan were formed under the chairmanship of Mountbatten। माउंटबेटन की चेयरमैनशिप के अंदर में 2 रिप्रेजेंटेटिव इंडिया से एंड 2 रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान से रखवाए गए। द कमिटी अपॉइंटेड डिफरेंट कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ द एक्सपर्ट एंड रिलेवेंट सब्जेक्ट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। इसमें एक्सपर्ट्स की भी हेल्प ली जाती थी एंड बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसको मैटर को सॉर्ट आउट किया गया। In case of any difference of opinion, both the nation admitted they accept the final decision given by the arbitrator, consisting on 1 representative of India and 1 from Pakistan. Under the chairmanship of the Chief Justice of India, Military Commandant General of India compiled the partition of army and weapons. आर्मी का वेपन का भी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। एंड अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो आर्बिट्रेटर यानी जो मतलब मिडल मैन है वो आके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता था। मतलब सब कुछ अच्छे से प्लान किया गया था। गुड। द ब्रिटिश आर्मी लेफ्ट इंडिया बाई February 28, 1948। तो 1948 तक ब्रिटिश की सारी आर्मी अपने देश वापस जा चुकी थी। ऑल द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री जुडिशरी गिवन अपॉर्चुनिटी टू चूज वेदर दे वुड टू सर्व इंडिया एंड पाकिस्तान। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनके सामने चॉइसेस रखी गई कि आप इंडिया के लिए काम करना चाहोगे या पाकिस्तान के लिए, ठीक है। दे वेर गिवन एश्योरेंस अबाउट देयर पे, अलाउंस, सिक्योरिटी ऑफ सर्विसेज, पेंशन एक्सेट्रा। उनको कहा गया कि आपकी पेमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको पेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अ लार्ज नंबर ऑफ द रिफ्यूजीज फ्रॉम बोथ द कंट्री माइग्रेटेड, leaving their houses and property. India solved their tremendous problem of the rehabilitation of the restoration of many skillfully and patiently. The then Deputy Prime Minister of India, and the Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel merged 562 small and big princely state of India to the Indian Union. Okay, देखो अभी एक KBC में एक और क्वेश्चन आया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन सी पोस्ट पे नहीं थे। तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे कंट्री के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर थे। ये दोनों ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल थे। कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं था आई डोंट नो, बट ये भी एक क्वेश्चन आया था। उन्होंने 562 स्मॉल एंड बिग जो किंगडम थे ना उन सबको इंडिया के अंदर मर्ज कर लिया और इंडिया को एक बहुत ही बिग और पावरफुल कंट्री बनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्ट्रांगली डिटर्मिनेशन एंड आयरन विल एंड डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन सॉल्व द प्रॉब्लम। सो फाइनली सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से हमारा कंट्री एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कंट्री बन पाया। सो फ्रेंड्स, वो सब क्या हुआ वो हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे ऑफ कोर्स, बट चलो हम लोग फाइनल पैराग्राफ पे आ जाते हैं एंड लेट्स डिस्कस। Yet long-term planning to find the solution of the problem like the effects of communal rights due to the partition. The shock of Mahatma Gandhi's death to make independent India self-reliant with the help of the good governance, a weak condition of Indian agriculture, to create an atmosphere and the peace of tranquility in the country, the internal and external security of a country has become necessary. देखो सब आज़ादी मिल गई है, लेकिन अब हमको एक लंबी मैराथन रेस के लिए रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। पहली तो कम्युनल राइट, पार्टीशन में जो कम्युनल राइट्स हुआ था, गदर मूवी आप सनी देओल को देख लेना, कितना मतलब खराब दंगे हुए थे।
एंड महात्मा गांधी जी की डेथ होती है विद इन 5-6 मंथ्स आज़ादी के। फिर इंडिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना है, सेल्फ रिलायंट कंट्री बनाना है। इवन हम लोग, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जब हम लोग आज़ाद हुए ना तो हमारे कंट्री में हम लोग इतना भी खाना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे कि हम लोग अपने देश का पेट भर सकें। हमको ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए से वीट मंगवाना पड़ा, वो भी लो क्वालिटी का, जो लोग अपने हॉर्सेस, गाय, भेड़, बकरियों को डालते हैं। समझ रहे हो? इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है। इंडिया के अंदर एक पीसफुल माहौल होना चाहिए। हमको, देश के अंदर ही बहुत सारे लोग हैं जो देश के लिए कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हैं, और हमको दूसरे देशों से भी खतरा है, क्योंकि अभी हमारा कंट्री जस्ट नया नया आज़ाद हुआ है, तो कोई दूसरा कंट्री हम पे अटैक भी कर सकता है और हमसे हमारी आज़ादी फिर से छीन सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारे सामने थी। वेल, क्वेश्चन आंसर वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन, बट आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया। सो विद दिस नोट आई एम ग्रांटिंग योर लीव। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर लिसनिंग।